ایک لنک آ جائے گا، اور ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں. محسن کو کا میں تعارف کروا دوں. جی محسن کویت میں ہوتے ہیں، بلکہ محسن اپنا تعارف خود ہی کروائیں گے. ابھی ہے محسن اس وقت، ان سے بلکہ نام بھی پوچھ لیجیے گا کہ یہ پرنس محسن گولڈ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا. دوستو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، سارا اس وقت ٹائم لرننگ پہ آئے گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کورس میں بھی ویسے ہی انرول ہوں جیسے آپ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ میں مفت خورے کے طور پہ انٹر ہو گیا ہوں، آپ لوگ پیمنٹ کر کے آئے ہیں، میں نے پیمنٹ نہیں کی، بس اتنا فرق ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. میں 100% سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرے ہاتھ میں یہ پین پیپر سارے پڑے ہیں، میں نوٹس لینے والا بندہ ہوں. تو انشاءاللہ اس کورس میں جو بھی کوشچن ہوں گے وہ ہم اینڈ پہ آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے اور پھر اسی کو انمیوٹ میں کر دوں گا. آج کنٹرول میرے پاس ہے، کل محسن کو ہم دے دیں گے کنٹرول بھی. تو آپ ہینڈ ریز کریں گے جا کے. اور ابھی لوگ آ رہے ہیں جی، میں ذرا ساتھ کروں. جی محسن، ویلکم ٹو دس پروگرام اینڈ آئی ایکسپیکٹ انشاءاللہ دیٹ آفٹر 10 days I would be able to trade cryptocurrencies. تھینک یو ویری مچ. اور محسن آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمیں اس قابل بنانے کی ہمت کر رہے ہیں. تو لیٹس ویلکم محسن جی. تھینک یو ویری مچ. محسن آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا، ابھی انمیوٹ کر رہا ہوں، ابھی آپ کر سکتے ہیں. ناؤ یو کین ٹاک. اور تھینک یو مسٹر اشرف، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے بھی اپرچونٹی دی کہ ہم اپنے فیلو پاکستانی سٹیزنس کو ایک ویلیوبل کورس ڈیلیور کر سکیں جو ہائیلی اس وقت ٹرینڈنگ اور ڈیمانڈ میں ہے، ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ گلوبلی. سو آئی ایم مور دین obliged ٹو بی ہیئر. میرا ایک سمپل اور ایک بہت جو مین پرپز ہے اس پریزنٹیشن کو آپ سب ہوسٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ہم زبان ہیں اور اس کورس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف 10 course days they will be able to become independent crypto traders. ہم اس کورس کے اندر پوری ایک سسٹمیٹک اپروچ یوز کریں گے. تھیوری سے بگن کریں گے ٹیکنیکل، اور ٹیکنیکل سے پھر ہم پریکٹیکل کی طرف جائیں گے. سو دیٹ تو میری ریکویسٹ ہے سب سے جی کہ جیسے ہم جب سیشن ہوسٹ کر رہے ہیں آپ فرسٹ 2 سیشنز کے لیے جو ہے نا تھوڑا پیشنس شو کیجیے گا. مے بی سم آر ایکسپیرینسڈ اینڈ سم آر ناٹ ایکسپیرینسڈ انف. تو ٹچ بیس کریں گے. کورس کا آبجیکٹو ہے انڈیپینڈنٹ ٹریڈر بننا اور ٹریڈنگ سیکھنا. ہم اس سیشن کو اس لیے ہوسٹ نہیں کر رہے کہ آپ کو یہ کرپٹو کرنسی ڈیولپمنٹ کورس نہیں ہے، نہ ہی آئی ٹی کا کورس ہے. اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے، ایکسچینجز کیا ہوتے ہیں، ان کا میکینزم ڈائنامکس کیا ہے، اور چارٹس کیسے اسٹڈی کرتے ہیں اینڈ ان پہ ڈیسیجن کیسا بنایا جاتا ہے. دس از ان بریف. تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے ہم پاور پوائنٹ اپنی پلے کریں گے وی ول کمیونیکیٹ اکارڈنگلی. So I'm ready to begin. آپ جیسے کہیں گے we'll start beginning the course. آپ ابھی پاور پوائنٹ شیئر کریں گے نا؟ جی بالکل. Let's begin. جی بالکل. ہاں all right. all right everyone, let's start. It's 30th April 2021. میں پوری کوشش کروں گا کہ جو پریزنٹیشن ہے ہم اردو لینگویج میں ڈیلیور کریں. آپ کو تھوڑا سا ایکسکیوز کرنا پڑے گا لینگویج کو. میرے لیے جو اردو ہے وہ فورتھ لینگویج کنسیڈر کی جاتی ہے. آئی ایم ویری فلوئنٹ ان انگلش، عربک اینڈ رشین. تو وی آر ہیپی ٹو ڈیلیور دس کورس. تو کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو آئی وڈ لائک ٹو ایکسکیوز. محسن میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنے لگا ہوں. سو مینی پیپل ور آسکنگ اباؤٹ ہو از محسن. تو آپ ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں ایسے 1-2 منٹ میں زیادہ نہیں ٹائم لگانا. بالکل. کین یو سی مائی اسکرین؟ جی آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. فرسٹ آف آل who am I? I'm very well known with the name Prince M. Golds. اس کی ریزن یہ ہے کہ I'm one of the well known traders and trainers in the whole Middle East. میں نے اپنا کیریئر بالکل ٹریڈنگ سے اسٹارٹ کی ہے. آج تک لائف میں جاب نہیں کی. تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے، وہ بھی ایک فائنینشیل بروکریج کے اندر. I am one of the co-founders of a cryptocurrency called Sword Coin and one of the developers of a crypto trading exchange called Sword Exchange.
یہ ایک brief سے introduction ہے. So I do have a background of what cryptocurrencies are اور یہ کیسے function کرتے ہیں. اور میں accredited trainer ہوں ISTD, International Society of Trainers and Developers, and Arab Society of Trainers and Developers. I've been teaching financial trading in one of the leading universities or number one university in Kuwait. اور میں اس وقت مڈل ایسٹ کا ایک واحد اور لیڈنگ ٹرینرز ہوں جس کے ٹریک ریکارڈز بھی پروون ہیں. سو یو شوڈ نو یور انسٹرکٹر پروفائل. اور میں یہ ایز اے بڑا پراؤڈ پاکستانی یہ چیز مطلب اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں ایز اے فیلو پاکستانی. اٹس ناٹ ٹو بریگ بٹ خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کیونکہ آئی ایم بورن ابراڈ, تو آئی واز لوکنگ فار اے پلیٹ فارم کہ ہم جو ہے اپنے فیلو سٹیزنس کو جو ہے اس طرح کی ٹریننگ ڈلیور کر سکیں. And I'm leading a very 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 well known financial brokerage اور ہمارے آفیسز اس وقت 5 کنٹریز میں ہیں. لیکن میں اپنے کیریئر یا کمپنی کو پروموٹ کرنا نہیں آیا. اٹس ٹو اونلی پروموٹ دس کورس اینڈ ایڈ ویلیو ٹو آور فیلو اردو اسپیکنگ سٹیزنس. تو یہ میرا جی بریف انٹروڈکشن ہے. اینڈ میری جو اوریجنل بیک گراؤنڈ ہے, آئی ایم ایکچولی نیسڈیک اینڈ کموڈیٹیز مینلی آئل ٹریڈر. پرنس ایم ڈاٹ گولڈز کیوں نام یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کی اسٹوری بڑے مزے کی ہے. In simple words, میں نے اسٹارٹ گولڈ ٹریڈنگ سے کی تھی. and I was living in a very very normal house, a normal apartment of single bedroom. تو جیسے ہی میں ورلڈ آف فائنینشیل ٹریڈنگ میں آیا, لیکن کی جو سکسیس تھی ٹریڈنگ کی, how I became a successful trader is only when I took a professional training program. اور دوسری چیز, I had a trading plan. آپ عموماً لوگوں کو سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے ہر کوئی جو ہے روتا ہے, آپ کسی سے بات کریں پیسوں کی یا اسٹاک ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ کی, انویسٹنگ کی, سارے کمپلین کریں گے جی اس میں نقصان ہو جاتا ہے, پیسے ڈوب گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میرا ہمیشہ ایک سمپل کوشچن ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اس سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نقصان ہو, کیا آپ مجھے اپنا ٹریڈنگ پلان دکھا سکتے ہیں؟ اینڈ the answer 99% of the time is they don't have any trading plan. کسی کا ٹریڈنگ پلان نہیں ہے. ہم اس کورس کے اندر انشاءاللہ کور کریں گے لاسٹ فیز کے اندر ٹریڈنگ پلان کیا ہوتا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور ٹریڈنگ پلان کس طرح آپ کو ایک فائنینشیل سکسیس کی طرف لے جائے گا. سو when I became successful as a trader after completing a professional training and I had my own trading plan, میں نے اسٹارٹ گولڈ سے کیا تھا. and I moved from a single bedroom to one of the most luxury apartments in my city in Kuwait, which is Salmiya, with amazing facilities. ینگ ایج پہ اکمپلشمنٹس بھی وہ کر لیں جو لوگ ایج آف 60 کے اندر اکمپلش کرتے ہیں, وہ میں نے اپنے ارلی یا مڈ 20s کے اندر کر لی. اینڈ آئی واز ویئرنگ اے گولڈ رولیکس. میرا جو پینٹ کا بکل جو تھا, بیلٹ کا بکل, اور شوز دیٹ واز آلسو میڈ آف گولڈ بریسلیٹس. بٹ آف کورس ایز اسلامک فیتھ اٹس ناٹ کریکٹ, بٹ یو نو اٹس دا ریج آف یوتھ بلڈ. تو یہ ایک سمپل انٹروڈکشن ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایگزیجریٹ. So let's move. Time کی بھی ہم نے قدر کرنی ہے جی. Time is more valuable than money. So let's begin. I hope this is enough. Shall we proceed? زبردست جی, آپ نے تو بڑا موٹیویٹ کر دیا. یہ سونے کی جو آپ کی گھڑی ہے یہ بھی بتا دینا اس کی قیمت کتنی ہے. اس کو ہم نے بھی یہیں سے پیسے کمانے ہیں, پھر وہی لینی ہے ہم نے بھی. It's almost $60,000. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. موٹیویشن ہے جی, مجھے تو موٹیویشن ہو رہی ہے. محسن go ahead please. All right, let's begin. So جی, who am I? اب آپ کو پتہ لگے what's my profile as a trader? Why do I do this? Basically مجھے مزہ آتا ہے جب ٹریڈنگ کا کیریئر سٹارٹ کیا تھا, اینڈ فائنینشیل لائف جو تھی ٹوٹلی چینج ہو گئی, ٹرانسفارم ہو گئی, مورف ہو گئی. تو فرینڈز نے جی کوشچن کیا کہ یار you have made this transformation, why don't you start like teach us also? تو جب ان کو سکھایا, they became financially successful, ان کے حالات چینج ہوئے, they became better, they became independent, they didn't have to do job again. تو پھر موٹیویشن ملی, یار why not teach this to people. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ہنر دیا ہے تو اس ہنر کا فائدہ کیا اگر وہ کسی سے شیئر نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. So I'm a very high risk promoter. میں high risk investments کو promote کرتا ہوں. I've been an individual trader for the last 16 years. ٹھیک ہے. Again it's to just promote myself and add value to the people. اب پلیز کیپ 3 things in mind. یہ جو ہمارا آج کا جو ٹریننگ پروگرام ہے, یہ 3 phases میں آپ کے پاس ڈیلیور ہوگا. پہلا فیز جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہوگا. ایچ فیز 3 دن کا ہے. 10واں دن ہم نے کوشچن آنسرز اور کمپریہنسو ایڈوانس ٹریننگ کے لیے رکھا ہے. سو فرسٹ فیز از تھیوریٹیکل. اس فیز کے اندر ہم صرف ڈسکس کریں گے کرپٹو کرنسیز کے بیسکس, اور ان کی ڈیپتھ میں نہیں جانا. لائک آئی سیڈ,
The objective is to teach you how to become independent traders and trade by yourself. हमने blockchain नहीं prepare करनी, ना ही हमने cryptocurrency तैयार करनी है, ना ही हमने cryptocurrency launch करनी है. So first phase के अंदर मैं I would request patience. जो लोग जिनका experience नहीं है crypto trading के अंदर, जिन लोगों का already experience exist करता है, people who already have experience, they know what is blockchain, they know what are types of cryptocurrencies. So please, I would request you for the first phase and for the period of 2 or 3 sessions, be patient. And जो लोग new है वो इस चीज से फायदा उठा सकें, so that we can move to the technical and practical part. तो ये आपका first ये schedule है for the first phase. Day 1 को आज हम सिर्फ फर्स्ट फेज को इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे. इन डे 1 वी आर जस्ट गोइंग टू कवर ये कोर्स किसके लिए है, क्योंकि आई वांट टू कीप इट मोर ओरिएंटेशन बेस्ड प्रेजेंटेशन टुडे. हु इज दिस कोर्स फॉर? ये कोर्स किन लोगों के लिए है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के क्या हैं. तीसरी चीज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, एक ब्रीफ टच देंगे. व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह हम बिल्ड करें, और उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे मास्टर किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम, इट्स अ मेंटल बिजनेस. फोर्थ थिंग वी विल डिस्कस टुडे इज ट्रेडिंग सेटअप एंड व्हाट आर द ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स. आपका ट्रेडिंग सेटअप के लिए आपको क्या, आपके पास टूल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए. फिफ्थ जो है हम फिर टच करेंगे व्हाट इज cryptocurrency. Okay, again day 2 day 3 we'll leave it for later. हम फिर थोड़ा टच करेंगे जी day 2 और day 3 के अंदर cryptocurrency की वैल्यू क्यों होती है, what's the rush, why is everyone chasing cryptocurrency, centralized और decentralized cryptocurrencies क्या हैं, altcoins किसे कहते हैं, blue chip cryptocurrencies क्या होती हैं, privacy cryptocurrencies, and importance of focusing on 1 or 2 cryptocurrencies only. मार्केट में इस वक्त ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर अवेलेबल. आप दिन को इंजीनियर, रात को डॉक्टर की जॉब नहीं कर सकते, सो यू डोंट रियली हैव टू ट्रेड ऑल ऑफ दीज. स्पेशलाइज इन 1 or 2 क्रिप्टो करेंसीज ओनली. तीसरी चीज आपकी आ गई जी, थर्ड डे वी विल डिस्कस व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ क्रिप्टो वॉलेट, और क्रिप्टो वॉलेट की किस्में कितनी है, और फिर क्रिप्टो वॉलेट का हमने हाउ कैन वी ओपन अ क्रिप्टो वॉलेट, हम अपना इंडिविजुअल क्रिप्टो वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. जिन लोगों को नहीं पता क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है, इट्स ओके, हम डे 3 में इसको डिस्कस करेंगे. देन हम जाएंगे जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे पैसों की दुनिया में, करेंसी की दुनिया में 5 आपकी मेजर करेंसीज होती हैं. जो लीडिंग करेंसी है वो आपका अमेरिकन डॉलर, दूसरा ब्रिटिश पाउंड, तीसरा स्विस फ्रैंक, जापानीज येन और कैनेडियन डॉलर आ जाता है. इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज की भी दुनिया में 5 मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी वैल्यूज भी काफी स्टेबल रहती हैं. अगर कोई फेज आ जाए, डाउन साइकिल भी आ जाए, तो उनका ड्रॉ डाउन भी बहुत कम होता है. एंड वील डिस्कस व्हाट इज द ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर अकाउंट, अकॉर्डिंगली विल मूव. सो phase 2 is going to be technical. All right, in phase 2 day 4 हम skip कर देते हैं इस वक्त phase 2 को. Let's get to the point. Okay, these will be discussed on the relevant days. All right, who is this course for? Today this is what we're discussing. ये course किसके लिए? Okay, this course is for people. अब 4 किस्म के लोगों की categories है. There are 4 kinds of people in this world. First category of the people, these people are right people. I hope the spellings are correct. So these spellings people, are not correct. ठीक है जी, मेरी पास करेक्शन भी करवाई थी, आप इसको RIGT लिखेंगे सर. ठीक है जी, सॉरी, we will amend it. यहाँ पे अब I am sure spellings की वजह से आप I am sure ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है वो क्रेडिबल है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्रेडिबल है. इंग्लिश वोकैबुलरी की मैंने लिखी कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कंटिन्यू प्लीज. Yeah, it can be rectified. So who is this course for? The first category of people is they are right. जो लोग हर वक्त सब कुछ जानते हैं, हर चीज का इल्म है, they have the best degrees, they have their relatives on higher government positions, उनको सारे चीज़ों का पता है, उनको ऐसे लोगों को समझने की जरूरत नहीं, they don't need any knowledge. So this course is not for people who think they're always right. No offense to anybody, but this is the fact. Second people who want to be comfortable. वो लोग जिनको comfortable होने का शौक है, they don't want to grow, they are happy doing 9 to 5 job,
اور ان کو 30-50-60 ہزار روپیہ ماہانہ آتا ہے, باہر بے شک ہڑتالیں چل رہی ہوں, لوگ بھوکے مر رہے ہوں, جاب کو خطرہ ہے, they just want to be comfortable. People who want to be comfortable, یہ کورس ان کے لیے بھی نہیں ہے. And the third category is the people who are looking for appreciation. They want to be liked. جو لوگ کا ایٹیٹیوڈ ہے, جن کا پرسنل ایٹیٹیوڈ ہے, they always want appreciation. جی میں نے پریزنٹیشن کیسی پریپیئر کی, آج میں نے کیک یوٹیوب سے بنایا, what do you think about it, آج میں نے مینجمنٹ کو یہ رپورٹ سبمٹ کی, آج میں نے پیشنٹ کو ایسا ٹریٹ کیا. So this is not really the course for people who are looking for appreciation. It is for the people who want to be in the fourth section of this quadrant, which is winners. یہ کورس ان کے لیے جن کے پاس winning attitude ہے, because winning requires sacrifice. ٹھیک ہے, 4 قسم کی sacrifice ہیں. It requires sacrifice, it requires a physical sacrifice. ابھی آپ کے پاکستان کے اندر اس وقت I think 10:30 11 o'clock ہو رہے ہیں. It's time to spend with family, it's weekend, but you are making a physical sacrifice. Then there's emotional sacrifice involved. ٹھیک ہے, spiritual sacrifice ہے جی. spiritual آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ بھئی کورس اچھا ہو جائے, ٹریڈنگ اچھی ہو جائے, ہمیں سارے skills مل جائیں. So we have a physical sacrifice involved, we have spiritual, we have emotional, اور چوتھی ہے جی financial sacrifice. Financial sacrifice, definitely you paid money for it, and آپ جب ٹریڈ بھی کریں گے اس کے لیے بھی کیپٹل چاہیے ہوگا. So this is for people who have a winning attitude, and they're ready to put in the 4 kind of sacrifices. Time management is very important. So آپ انشاءاللہ ہم ساری چیزیں تو کریں گے کور کورس کے اندر, اور انشاءاللہ مزید کورس کمپلیشن کے بعد بھی ہماری ایک سروس لانچ ہوگی which is to facilitate in helping you very good results. لیکن 10 days کے بعد it doesn't mean you're going to be a millionaire on the 11th or 12th day. You have to use a systematic approach. So یہ تھی جی ایٹیٹیوڈ ایڈجسٹمنٹ کا کوادرنٹ. This course is for people جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹ ٹائم انکم جنریٹ کر سکیں. People who are looking for part time income. ٹریڈنگ, بائی دا وے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ٹریڈنگ ایک فل ٹائم جاب نہیں ہے. میرے 16 ایئرس کا جو ٹریڈنگ کیریئر ہے اس میں سے فرسٹ 4 ایئرس تو سکسیس کے نہیں تھے, کیونکہ ٹریڈنگ واز سم تھنگ نیو ٹو انڈیویجول ٹریڈرس. ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی, پینٹیم 2 تھا, نہ ہی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ, نہ ہی یوٹیوب, نہ ہی گوگل, نہ ہی بکس, نہ ہی کوئی پراپر ورک شاپس تھی. And I was quite underage. I was like 16 or 17 years old only when I was trading. ہمیشہ جو میری ارننگ ہوئی ہے ٹریڈنگ کے اندر جو میں نے کی ہے, اس کے اندر 2 گھنٹے سے زیادہ کا ایفرٹ کبھی نہیں میں نے ڈالا. امریکن مارکیٹس جو اسٹاک مارکیٹس ہیں دے اوپن ایٹ 4:30 6:30 پاکستان کے ان دا ایوننگ. جو کرپٹو کرنسی مارکیٹس ہیں دے آر اوپن 24 hours 7 days a week. میں نے کبھی دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ کا ایفرٹ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, so this is always, بے شک یہ شروع میں آپ ایز اے پارٹ ٹائم بزنس کو کنسیڈر کریں گے. ایونچولی when you become successful, پارٹ ٹائم انکم, if you take a systematic approach, آپ اپنی اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہیں, کورس میں بتائے گئے رولز, کورس کے اندر سکھایا گیا ٹریڈنگ پلان آپ فالو کر رہے ہیں, انشاءاللہ it will lead you to success. And the part time income can be equivalent or more than full time income. جو ایک چیز میں آپ کو ایڈیشنل بتاتا جاؤں, میرا اس وقت جو اسٹوڈنٹس کا سکسیس ریشیو ہے وہ اٹ از آلموسٹ اراؤنڈ 65%. 35% اسٹوڈنٹس وہی لوگ ہیں جن کا فیلئر تھا, جنہوں نے پراپرلی ٹریننگ اٹینڈ نہیں کی اور انہوں نے اسٹریٹجی اور ٹریڈنگ پلان کو فالو نہیں کیا. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو اسٹریٹجی سکھائی جائیں گی نا ٹریڈنگ کے اندر, یہ ایک پروون اسٹریٹجیز ہیں, ان کو ماڈیفیکیشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو آپ ماڈیفیکیشنز کرنے کی کوشش کریں گے یا سوچیں گی بھی نا, وہ پچھلے 16 ایئرس کے اندر میں کرتا رہا ہوں. سو ٹو avoid huger losses or trading problems, try to follow the contents of trading strategies and trading plan in this course. So it's also for people or ladies جو job نہیں کرتی, they want to start a part time business from home. Financial trading جو ہے it is an online business. ٹھیک ہے, it's an electronic business. ٹریڈنگ کا مطلب تجارت ہی ہے نا, خرید و فروخت ہوتی ہے گڈس کی. آپ ایک دکان کے اندر یا بزنس کے اندر پروڈکٹس کی یا سروسز کی بھی خرید و فروخت کرتے ہیں. کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر آپ کرپٹو کرنسیز کو
trade करेंगे. So it's for people who are looking for part-time income, additional income. They want to make a passive income. That's also possible. So this is who the course is for. So let's go to our next slide. Now let's start the introduction to cryptocurrency trading. Before I touch base, what are the advantages of trading cryptocurrencies? इसके जी 5 what are the 5 advantages and benefits of cryptocurrencies? पहला advantage जो है, there is transparency of information. Next slide में उनकी डेप्थ में जाएंगे. Second is freedom to make payments. Freedom to make payments. मैं अगर वेस्टर्न यूनियन से किसी कंट्री में पेमेंट भेजना चाहता हूँ या कोई दूसरा बैंक वायर ट्रांसफर करना था किसी भी डिफरेंट कंट्री में जहाँ पे मैं बेस्ड नहीं हूँ, जहाँ का मैं सिटीजन नहीं हूँ, हमेशा या काफी दफा बैंक्स या मनी एक्सचेंज कॉल करती है, जी आपका रिलेशनशिप क्या है, आप वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं, आपका ब्लड रिलेशन कोई नहीं है तो आप जो है इधर पेमेंट नहीं भेज सकते. So cryptocurrencies give a trader or a person to have freedom to make payments. Third is security and control. कितनी ये सिक्योर हैं, आपको अपने पैसे पे कंट्रोल होगा. एंड दे आर टोटली लो फीस. आज एक मैं बैंक वायर ट्रांसफर करता हूँ जाके, और ये ग्लोबल एक किस्म का चार्ज है. अगर मैंने किसी भी कंट्री में बैंक टू बैंक पैसे सेंड करने, अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है मिनिमम $30 to $50 की आती है. एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव. अगर वो चाहे क्यों ना वो ट्रांजेक्शन $100 की हो या $150 की, दे आर ऑलवेज गोइंग टू चार्ज मी $30 to $50. अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज ऑफर लो फीस. आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करें या सेंड करें या रिसीव करें, बहुत ही नेग्लिजिबल फीस इन्वॉल्व होती है. एंड अप्रोक्सीमेटली जिस कंट्री में भी आप बेस्ड हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली जो टैक्सेस हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं. एंड इट हैज वेरी फ्यू रिस्क. लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड. ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे वो बैंक में हो या पर्सनली हो, ठीक है, दे आर नॉट रियली, उसका जो रिकॉर्ड है बैंक्स हमेशा मेंटेन करते हैं, ठीक है. आपकी ट्रांजैक्शंस जो है दे आर नॉट डिस्क्रीट, बट लेट्स रीड द स्लाइड, उसके बाद हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं. एवरी पर्सन्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ देयर पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू मनी ट्रांसफर. इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, users get transparency as their information remains private, stored in the blockchain technology. On the other side, transparency helps users in making transactions accordingly with full freedom. आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, ये ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हम नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे, जैसे ही आप ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, पैसे सेंड करते हैं, क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, एक लेजर में आ जाती हैं. लेजर एक रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. ट्रांसपेरेंसी का फायदा क्या है, इसको करप्ट नहीं किया जा सकता. अभी जो करंट हमारा कन्वेंशनल मॉनेटरी सिस्टम है, जो पैसों का सिस्टम है, जो आपके पैसे हैं, जो पाकिस्तानी रुपये है, इट इज इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, जब पैसे इशू करती है, पैसे प्रिंट करती है, उनके ऊपर सीरियल नंबर होता है हमेशा. इस सीरियल नंबर का जो रिकॉर्ड है लेजर का, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो हिडन रखा जाता है. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, गवर्नमेंट भी मैनिपुलेट कर सकती है और फोर्ज पैसे भी बनाए जा सकते हैं. फोर्ज से मतलब जो नंबर 2 नोट आप कह लें हमारी एक स्लैंग वोकैबुलरी में, ये भी इशू हो जाते हैं. ये एक फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम जिसमें हम ऑलरेडी रह रहे हैं, चाहे वो डॉलर का हो, कुवैती दिनार्स का हो या पाकिस्तानी रुपीस का हो, इसमें काफी मार्जिन ऑफ करप्शन एंड एरर्स हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी से इंटीग्रेटेड है, हर ब्लॉक के अंदर जो होती है, इन ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, और कोई भी इसके अंदर कोई करप्शन करना चाहे या चीट करना चाहे, वो जो है इट इज लाइक स्टील प्रूफ. इट्स अ स्टील प्रूफ सिस्टम. सो क्रिप्टो करेंसीज एंड द टेक्नोलॉजी इज वेरी ट्रांसपेरेंट. इसके अंदर घपले के जो चांसेस हैं बहुत नेग्लिजिबल है. बट दिस स्टेटमेंट दैट आई एम सेइंग इज ओनली एप्लीकेबल. ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एप्लीकेबल सिर्फ जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज के लिए है, क्योंकि फेक क्रिप्टो करेंसीज भी होती हैं और जेन्युइन भी हैं, और वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट हाउ टू आइडेंटिफाई देम. इसलिए हम वो फंडामेंटल एनालिसिस के चैप्टर में कवर करेंगे कि आप जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक फेक क्रिप्टो करेंसी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, सो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, और इट ऑफर्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, totally low fees or no tax at all.
آپ یوزلی جیسے میں بتا رہا ہوں اگر میں کرپٹو کرنسیز اپنی ریگولر جو کنونشنل منی ہے اگر میں اپنی فیملی کو پاکستان میں یا کسی فرینڈس کو پیسے بھیجتا ہوں پاکستان کے اندر تھرو بینک اور تھرو ویسٹرن یونین اٹ کاسٹ می الاٹ. اس کی ٹرانزیکشن فیس $30 to $50 آتی ہے منیمم اماؤنٹ پہ. جتنا بڑا اماؤنٹ ہوگا اتنی بڑی ٹرانزیکشن فیس اپلیکیبل ہوگی. تو کرپٹو کرنسیز کے اندر فیو سیکنڈس کی ٹرانزیکشن ہے اینڈ اٹس ویری لو کاسٹ. لیٹس ریڈ دا سلائڈ. ایز ان دا کیس آف فیاٹ اور ٹریڈیشنل کرنسیز, فیاٹ کرنسی سے مراد ہے آپ کی پیپر کرنسی. بائی دا وے اف آئی ایم بینگ سلو مجھے کوئی ماڈریٹرز میں سے بتا دے اف آئی ایم ریلی فاسٹ جسٹ ٹیل می اف آئی ایم فاسٹ. ہاں آلرائٹ, مجھے تو کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا. باقی اگر ہمارے جو دوست ہیں کسی کا کوئی اسپیڈ سے ریلیٹڈ کوشچن ہو تو وہ کامنٹ میں ذرا بتا سکتے ہیں. مجھے آئی ایم انجوائنگ اٹ. آلرائٹ, ٹھیک ہے جی. فیاٹ منی از دا پیپر منی, ٹھیک ہے, اینڈ ٹریڈیشنل کرنسیز ہیو ٹو پے فیس. گورنمنٹ نے ہمیشہ, کیونکہ گورنمنٹ نے شائع کیا ہوا جی آپ کا بینک نوٹ, انہوں نے اپنا کٹ اس میں چیرا لگانا ہے, سوری ٹو سے دیٹ, انہوں نے اپنا چیرا لگانا ہے, دے ول ٹیکس یو. اچھا ٹیکس الگ کٹتا ہے اور ٹرانزیکشن فیس الگ کٹتی ہے, ٹھیک ہے. سو users have to pay fees when making transactions based on the amount. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا, چھوٹا اماؤنٹ ہوگا کم فیس, جتنا بڑا اماؤنٹ ہوگا فیس بڑھتی جائے گی. Crypto currencies doesn't require these things. All transactions are performed with Bitcoin or cryptocurrency or any cryptocurrency requires low fees and not a single tax is charged. آپ جب کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں یا ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو یا کوئی پرچیز آف سروسز بھی کریں, آج کل کے دور میں کرپٹو کرنسی سے پروڈکٹس اینڈ سروسز بھی پرچیز کی جا سکتی ہے, شاپنگ بھی ہو رہی ہے. اور ریسنٹلی اگر آپ کو پتا ہو ٹیسلا ون آف دا بگیسٹ مینوفیکچررز آف الیکٹرک کارز, انہوں نے بھی کرپٹو کرنسیز میں پیمنٹ ریسیو کرنا شروع کر دی ہے. یو کین بائی کارز اینڈ آٹوموبائل تھرو کرپٹو کرنسیز. ناٹ اونلی دیٹ, ایک پروسیس ہے جیسے ایک کمپنی پیسے جمع کر کے شیئرز ایشو کرتی ہے, اور شیئرز ایشو کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگولیٹری باڈی کے پاس جانا پڑتا ہے, سرکاری باڈی کا, وہ چاہے پاکستان میں آپ کا SCCP ہو جائے, سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. کمپنیز وہاں پہ ایک بڑا فنڈ لے جاتے ہیں کہ ہم نے جی IPO کرنا ہے, انیشیل پبلک آفرنگ, لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں, اس کے پھر پیپر ورک ہیں اینڈ اٹ ٹیکس اٹ کاسٹ ا لاٹ اینڈ ان ٹرمز آف منی اینڈ ٹائم. اب کمپنیز جو ہیں دیر از سم تھنگ کالڈ ٹوکنز, وہ اپنے شیئرز کو ایشو کرنے کے بجائے ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ وہ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں اپنے شیئرز کو انسٹیڈ آف کالنگ اٹ شیئرز وہ ٹوکنز ایشو کر دیتے ہیں. اور اس وقت کافی کمپنیز انکلوڈنگ ٹیسلا انہوں نے اب ٹوکنز ایشو کر دیے. آپ ہمارے شیئرز اگر نہیں خرید سکتے, ایک شیئر اگر $700 کے اور آپ کے پیسے نہیں, کیونکہ $700 ایکسپینسو, آپ کم سے کم $10 کا بھی شیئر لے سکتے ہیں فریکشنل, بٹ that will you can only purchase this in form of a cryptocurrency. So globally چیز change ہو رہی ہے. So the companies are instead of issuing shares they are offering tokens and this is affordable and accessible to all kind of people. So not a single tax is charged کیونکہ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں گورنمنٹ اس کو وہ نہیں کر سکتی, it's totally decentralized. ہم decentralized کے پر آگے بات کریں. It saves lot of money, ٹھیک ہے, and it has a great future. Let's move to the next slide which is fewer risks. اس کے اندر رسک بہت کم ہے, رسک بہت کم ہے, رسک کی different definitions ہیں. پہلی بات, کرپٹو کرنسیز can be purchased in with any amount. اگر ایک کرپٹو کرنسی بہت ایکسپینسو ہے, ضروری نہیں کہ اگر آپ کیسے آج ایک بٹ کوائن جو ہے $50,000 کا ہے اینڈ آپ نے $50,000 اگر ایک ٹیسٹ ٹرانزیکشن کرنی ہے, یو وانٹ ٹو بائی اے کرپٹو کرنسی, آپ $50,000 رسک نہیں کرنا تھا کیونکہ بیکاز یو آر نیو, آپ کو بھی آتے نہیں کرپٹو کرنسی کیسے پرچیز کرنی ہے, تو آپ منیمم $10 کی انویسٹمنٹ سے بھی نا ایک ٹیسٹ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں ٹو منیمائز دا رسک. اگر آپ کسی انویسٹمنٹ فرم میں جاتے ہیں یا فائنینشیل انویسٹمنٹ سروسز فرم میں جاتے ہیں, ان میں ہمیشہ ایک کوٹا ہوتا ہے, میوچل فنڈز ہو گیا یا ریئل اسٹیٹ ہو گیا, کہ آپ نے منیمم جو ہے 10 lakhs, 5 lakhs, 20 lakhs انویسٹ کرنے ہیں, which is I think more than $1,000, ٹھیک ہے. اینڈ یو ڈونٹ نو, آپ نے چیک کرنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پرفارم کیسا کرتی ہے. ان دا ورلڈ آف کرپٹو کرنسیز یو کین ٹیسٹ دا فائنینشیل ریزلٹس ود منیمم اماؤنٹ آف منی. تھوڑا سا سلائڈ بھی ہم ساتھ ریڈ کر لیتے ہیں. آئی ہوپ سلائڈ ویزیبل ہے, میں نے جان بوجھ کے ڈیٹیلڈ رکھی ہے
यूजुअली प्रेजेंटेशन का जो उसूल है वो ये कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए. वो लोग जो मिस कर रहे हैं हमारे सेशन को या अवेलेबल नहीं है, आई मेड इट डिटेल्ड सो दैट if they didn't attend the session they can at least read to grasp the whole idea. So let us read. People who are looking to make money with cryptocurrency should know they have totally low risk at all. The first thing is that entire transaction of cryptocurrency is based on blockchain technology, and as the currency is present online only. ठीक है. आपके जो बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जो पैसे हैं इफ देयर अवेलेबल इन द बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को पूरा हक है कि अगर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाए, इकोनॉमिकल क्राइसिस कंट्री में हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, आपकी लोकल करेंसी की वैल्यू गिर जाए, वो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर सकते हैं. अगर आपने जेवरात जमा किए हैं अपने बैंक के ड्रॉवर में, उसको भी वो लोग फ्रीज कर सकते हैं. ठीक है. सो द मनी दैट यू कीप इन द बैंक, इट इज मोर एट रिस्क. और वो पैसे जो आप अपने अगर गद्दे के नीचे भी या किसी कालीन के नीचे भी छुपा के रखते हैं, एक फ्रेम के पीछे छुपाते हैं, इन केस ऑफ थेफ्ट उसके ऊपर भी रिस्क है. क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये चूंकि ऑनलाइन स्टोर होती हैं, इनकी एक फिजिकल लोकेशन नहीं होती, ऑनलाइन क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं, उनके अंदर आप उनको स्टोर करते हैं. दैट्स व्हाई रिस्क ऑफ getting your cryptocurrency stolen is very minimal. That's one of the definitions of or key points of few risk in cryptocurrencies. So they are present online only. On the other hand, as already mentioned above, that cryptocurrency provides transparency to the users, so it helps them in keeping their information, whether it's financial or personal, totally safe or private. आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज ऑनलाइन भी रख सकते हैं और एक फिजिकल लोकेशन में भी रख सकते हैं, विच विल बी इन द कमिंग स्लाइड्स, जहाँ पे हम क्रिप्टो वॉलेट्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल वॉलेट्स किस तरह कहते हैं, लेजर्स बोलते हैं इनको. So these are the great advantages that people get after engaging in cryptocurrency trading. Nor this is a part of these advantages. For several other links, user can make international transaction and all payments are completed really and fast. Now अब अगर बैंक के साथ हमने ट्रांजैक्शन करनी है, if I want to send money abroad, whether it's United States or Pakistan, wherever it is, इनका जो process है, it is 2 to 5 working days. If I want to transfer money from bank to bank, fiat money, dollars, Kuwaiti dinars or rupees, 2 to 5 working days इसका procedure है. अच्छा, it can be more. अगर कोई बैंक को इस पे शक हो, ये suspicious लग रही है, सेंडर रिसीवर के नाम मैच नहीं कर रहे और वो रिलेटिव्स नहीं है, और ना ही ये कॉर्पोरेट ना क्लियर है कि किस परचेज ऑफ सर्विसेज है या पर्सनल ट्रांसफर है, इट कैन टेक अप टू 15 डेज टू रीच दैट मनी अगर सस्पिशन आ जाए. क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आई कैन बाय एनी क्रिप्टो करेंसी विद द मनी आई हैव, वेदर इट्स इथेरियम, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, जो मर्जी आप कर लें, विद जस्ट ए क्लिक ऑफ द माउस. ठीक है. इन लेस देन 5 minutes or a minute depending on the cryptocurrency, जिसको मैंने पैसे भेजने as a sender, receiver can get the money and in less than 15 minutes he can also cash it out. हमारे कोर्स के अंदर एक सेक्शन है जी, आप पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसीज कैसे परचेज कर सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, एंड ये हार्डली 15 मिनट्स का ऑपरेशन है. आप बाय भी कर सकते हैं लेस देन 15 मिनट्स, और आपने उनको कैश आउट भी करना है लीगली, you can also do that in less than 15 minutes. So I hope the advantages of cryptocurrency trading are clear. Just मैं few चीजें आपके साथ शेयर करूं कि why to trade cryptocurrencies. ये तो हमने टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात की है ना, इसके अंदर cryptocurrencies के एडवांटेज क्या है. ट्रेडिंग जो है, it is quicker way to make money versus investing. इन्वेस्टमेंट से मुराद लॉन्ग टर्म. आपने क्रिप्टो करेंसी या कोई भी शेयर खरीद लिए या रियल एस्टेट खरीद लिए, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इसको मैच्योर होने में टाइम लगता है. लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी है, आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं. ठीक है. मार्केट्स मूव होती हैं डिमांड की वजह से. जो आप एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चार्ट के अंदर देखते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, चार्ट एनालिसिस से आपको पता लग जाता है ये चीज डिमांड में है. always when you see a big move happening fast, आप instantly उसी वक्त मार्केट में एंटर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं, you can make your money and get out. ठीक है. another advantage of trading के अंदर आपको
एनालिसिस रिसर्च कम करनी पड़ती है. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल इस वक्त ग्लोबली एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं. इन ट्रेडिंग यू डोंट हैव टू डू सो मच रिसर्च, आपको चार्ट स्टडी करना आना चाहिए, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन फेज 2. अगर आप अभी इसको हम कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट के साथ, अगर आपने किसी भी जगह पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट परचेज करना है, आप उसकी पूरी रिसर्च करेंगे, इसकी रजिस्ट्री है, ऑनर्स हैं, इसकी सेल हिस्ट्री क्या घर की, इसका डायमीटर वगैरह व्हाटएवर इट इज, यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड फिर भी इसके बाद आप कॉन्फिडेंट यू विल बी कॉन्फिडेंट और यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट. तो अगर आपने ट्रेड करना, यू वांट टू डू अ क्विक बाय एंड सेल इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, इट कैन बी डन इंस्टेंटली. ठीक है. ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस, क्योंकि कम रिसर्च करनी पड़ती है तो इमोशंस भी कम इन्वॉल्व होते हैं, और आप एक ही चीज को, एक ही प्रोडक्ट को, एक ही क्रिप्टो करेंसी को several times during the day आप you can trade it several times within the day. All right, now let's move to some negative parts. ये मैं slide skip कर देता हूँ, ठीक है. You know what, let's give it a go. In conclusion, the only thing that matters for a lot of traders is learning the trading skills. जैसे मैंने आपको बताया, आपसे मैंने पहले ही शुरू में रिक्वेस्ट कर लिया था कि ये थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं और आपने पेशेंस शो करना है. ऑलराइट, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडर्स इज लर्निंग द ट्रेडिंग स्किल्स, एक्वायरिंग इनफ नॉलेज एंड लर्न टेक्निकल एनालिसिस टू मेक एन इफेक्टिव कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजन. आफ्टर देन they have traders have higher chances of making good money via trading. The more reputed and trustworthy platform से मुराद ट्रेडिंग एप्लीकेशंस क्रेडिबल जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, प्रिफर्ड हैं, एंड दे आर मोर सिक्योर्ड फॉर पीपल टू ट्रेड. दे प्रिफर फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस द बेटर सर्विसेज दे गेट. एट द एंड ऑफ डे ट्रेडिंग में सिर्फ आपने पैसे नहीं कमाने, सिर्फ पैसे नहीं बनाने, जो आपकी ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग की जो फीस है ना, वो भी मैटर करती हैं. बिकॉज इफ यू आर ट्रेडिंग इन बल्क या बड़े अमाउंट से ट्रेड करने हैं, तो आप यू शुड हैव सम डिस्काउंटेड commissions or transaction fees. At the end of जब हम जाएंगे in our how to open a trading account, जो if people जिनके already trading account exist नहीं करते, they don't have a trading account, they can coordinate with our moderators. We can assist in getting 5 to 20% discount if they open a trading account through our referral. And this is not to promote, it's just for us to help our community to build a team. ठीक है जी. Now disadvantages थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. What are the disadvantages of trading cryptocurrencies? ठीक है. In 4 points के अलावा, these are technical. Let me tell you what are the other disadvantages. First of all, higher burn risk. आप साथ साथ प्लीज टेक नोट्स ऑल्सो. जो चीजें मैं स्लाइड्स में ऐड नहीं की, जो वर्बली मैं डिस्कस कर रहा हूँ आउट ऑफ द टेक्स्ट इन द स्लाइड्स, प्लीज डू टेक नोट्स. Please write it down. I would suggest take notes. There are like approximately five disadvantages of trading cryptocurrencies. पहला जो है higher burn risk. Higher burn risk से मुराद क्या है कि आप अगर ट्रेडिंग में एडिक्ट हो जाते हैं, आपका चस्का देखें, when the money keeps coming in, चस्का बंदे को लग जाता है. एंड ना that's why you have to build discipline. हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर. हायर बर्न रिस्क से मुराद ये है कि आपका टारगेट है दिन के अंदर आपने 1% से 5% दिन के अंदर अचीव करना है, एंड दिस इज अचीवेबल. लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रेड करना मजीद शुरू हो गए, आपको दिन के अंदर 1 से 2 घंटे आपने डेडिकेट करने हैं ट्रेड करने के लिए. लेकिन इंस्टेड ऑफ डेडिकेटिंग like 1 to 2 hours, आपने 2%, 5%, 10% अचीव कर लिया, बट आप पूरे 8 घंटे 6 घंटे आप उसको कंटिन्यू रख रहे हैं. इसमें यू विल बर्न योरसेल्फ इन 2 ways. फिजिकली आप एग्जॉस्ट होंगे, यू विल बी मेंटली एग्जॉस्टेड, यू विल बी फैटीग्ड, एंड यू विल बी रियली इन अपसेट मूड कॉन्स्टेंटली. सेकेंडली, ऐसे भी हो सकता है एक्सक्यूज मी, ऐसे भी हो सकता है कि आपने 10, 20%, 5% तो बुक कर लिए जो आपका डेली का टारगेट था, लेकिन आप क्योंकि मजीद कंटिन्यू करते जा रहे हैं, यू आर नॉट स्टॉपिंग. मार्केट अगर रिवर्स होगी, जो आपने अर्न किया था वो भी किया, एंड यू कैन ऑल्सो डैमेज योर इनिशियल प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया है. सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इज यू कैन गेट इनटू
higher burn risk. ठीक है. Second is it creates more frustration. ठीक है. Like I said, if you trade more than your delegated hours, अब 24 hours 7 days a week अगर trading है, it doesn't mean कि आपने 7 दिन ही trading करनी है. Build some discipline. 5 days a week रखें. Monday to Friday कोई बुरी बात नहीं है. Tuesday to Sunday रख लें. It's fine. So please allot yourself days so that you don't get frustrated. तीसरी चीज है जी, ट्रेडिंग अगर आपने मजीद constantly trade करना है, if you want to be really a full time trader, you are taking it as a full time career, you are not taking it as a part time. इस अगर आपने छोटे छोटे benefits gain करने हैं 0.5%, 0.1%, that's what you're looking to make multiple transactions in a day. What this will do, आप addict होने, it will require constant attention. अगर आप short term trading को के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, then you have to give constant attention, and this is really not nice and this is not healthy. Trading तीन किस्म की हैं: scalping, day trading and swing trading. If you want to write it down, please take note. Scalping, day trading and swing trading. मैं आपको अपने experience के से बताता हूँ. Not only having experience in financial brokerage and as a trader and as a trainer, life में मैंने आज तक कोई स्कैल्पर और डे ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं देखा. आपको मिलियंस ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन मिलेंगे स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग के ऊपर. ये झूठ बोलते हैं. और अगर आप इनसे पूछें कि आपने अपने डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के आप 2 इयर्स की ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाएं, दे विल फेल टू शो इट टू यू. व्हाट इज स्कैल्पिंग प्रिंस? स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग हम अपने इंशाल्लाह मैं ब्रीफली भी बता देता हूं, वो हम अपने फेज 3 में डिस्कस करेंगे. स्कैल्पिंग मींस आप मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और आपने विद इन फ्यू सेकंड्स और लेस देन 5 मिनट्स ट्रांजैक्शन करके निकलना है, ईदर इन प्रॉफिट और ईदर इन लॉस. दिस इज व्हाट इज स्कैल्पिंग. ट्रेड, गेट इन द मार्केट फॉर फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट, बाय किया, बाइंग एंड सेलिंग कॉन्स्टेंटली और मल्टीपल टाइम्स की. अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आई डोंट थिंक सो यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि मेरा ब्रोकरेज का भी एक्सपीरियंस है. स्कैल्पिंग एक फितना है, एंड आई रियली मीन इट. मैं रूड नहीं हो रहा, ना ही इम्पोलाइट. स्कैल्पिंग एक फितना, एक टर्मिनोलॉजी ब्रोकर्स ने क्रिएट की थी ताकि ब्रोकर्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कमीशंस कमा सकें. स्कैल्पर्स जो हैं हमेशा ब्रोकरेजेस और एक्सचेंजेस को फायदा देते हैं, उनका अपना फायदा कभी नहीं होता. ऑलराइट, दिस इज व्हाट इज स्कैल्पिंग. सो दिस हैज इट्स डिसएडवांटेजेस, और इसके डिसएडवांटेजेस 90% है. इसके एडवांटेजेस ऑनेस्टली देयर आर नो एडवांटेजेस फॉर बीइंग अ स्कैल्पर. मैं रिकमेंड करूंगा, डोंट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ स्कैल्पर एंड डोंट इवन फॉल फॉर स्कैल्पिंग कोर्सेज. सेकंड इज डे ट्रेडिंग. डे ट्रेडिंग से मुराद है आपने विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स मार्केट में एंटर करना है और एग्जिट करना है. डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं they are also not so successful if अगर बैक टेस्ट किया जाए. अगेन डे ट्रेडिंग कोर्सेज भी बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. मोस्ट आर स्कैमर्स, दे डोंट टीच इट एंड दे डोंट नो हाउ टू डू इट, एंड नो ट्रेनर. यहाँ पे मैं मिडिल ईस्ट का एक सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए कंसिडर करता हूँ कि अगर मेरे से जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होस्ट करता हूँ, मेरे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है. यहाँ पे काफी सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं who do not have any track record, but their presentations or skills are good. But when it comes to showing a track record, ना phone उठते हैं, ना emails के answer आते हैं. So I am telling you from my experience as a financial broker, as an executive of financial brokerage, and as a retail trader, there is nothing called scalping and day trading. It's just to make the brokers and exchangers more commission. हाँ, day trading में जैसे मैंने बताया कि crypto trading is just like an online business, or it is a business actually. जैसे आपके बिजनेस में रोज कस्टमर्स नहीं होते. आज मेरी अगर शॉप है या मेरा रेस्टोरेंट है, आज मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कल कस्टमर्स नहीं है, परसों इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को कहता हूं यार मुझे हेल्प कर दो आके, देयर टू मेनी कस्टमर्स. तो इसलिए नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे. आपने जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है. हर दिन ट्रेडिंग और हर दिन बिजनेस का नहीं होता. बट जब ट्रेडिंग डे आएगा और आपने डे ट्रेडिंग करनी है, उसके स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है जो हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे. ठीक है, there is a way to day trade successfully, but it will not be considered as day trading क्योंकि regular trading नहीं होती. All right, so I hope this is clear. And fourth, disadvantages. So let's go. Oh, sorry, we missed the swing trading. Swing trading means
you take a position in the market, आप एक ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और उसको आप स्ट्रेच करते हैं हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, या sometimes you can say from 3 to 5 days minimum until few weeks. And swing trading के results भी काफी अच्छे हैं और हमारी जो strategies हैं they will cover they are hybrid of day trading and swing trading. All right, so this is what swing trading is. I hope swing trading की definition clear होगी. अगर किसी को trading terminologies जो है types of trading clear नहीं है, they can write in the chat box and at the end of session we can answer that. जी मोहसिन, आपने ये जो इस वक्त आपकी स्लाइड लगी हुई इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग 4 डिसएडवांटेजेस, इसको मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और बिल्कुल आज का सेशन बिल्कुल. सो मैंने नाउ लेट्स गो टू दिस फॉर, पहले तो मैं डिसएडवांटेजेस अभी क्लियर कर दिए ना जो आउट ऑफ स्लाइड है. नाउ लेट्स गो टू दिस स्लाइड, लेट्स कवर दीस थिंग्स. फर्स्ट स्केलेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज और प्राइस वॉलेटिलिटी एंड रेगुलेशन. स्केलेबिलिटी से मुराद जो है, कभी कभी मार्केट के अंदर भी इतना वॉल्यूम नहीं होता, या जो क्रिप्टो करेंसी आप जो ट्रेड करने की कोशिश करें ना उसकी एग्जैक्टली इतनी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती. सो scalability can be it's one of the disadvantages of crypto trading. Second आपका आगे जी साइबर सिक्योरिटी इश्यूज. आप मे बी आप जब ट्रेड कर रहे हैं आपका कंप्यूटर जो है इट इज एक्सपोज टू हैकिंग, और मे बी जो आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहे हैं इट इज नॉट रियली एन एक्चुअल, इट्स अ फेक करेंसी, यू नो. तीसरी चीज, जब आप क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइवेट कीज होती हैं, आप जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आप समझ ले जैसे पैसे तिजोरी के अंदर सेव किए जाते हैं और तिजोरी की की होती है ना, इसी तरह हर क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसकी एक अपनी स्पेसिफिक क्रिप्टो वॉलेट होता है. अगर बिटकॉइन मैंने ट्रेड करना है और सेव करना है, स्टोर करना है, तो वो बिटकॉइन के डेडिकेटेड क्रिप्टो वॉलेट में होगा. अगर मैंने इथीरियम बाय करना है और उसको स्टोर करना है, वो इथीरियम के वॉलेट में होगा स्टोर, और हर वॉलेट की एक प्राइवेट कीज होती है. तो अगर आपकी प्राइवेट कीज एक आपने सेफ या सिक्योर जगह पे नहीं रखी है और आपने लेट से एक वर्ड फाइल के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइवेट कीज है सेव कर दिया, आपके डेस्कटॉप पे है, और किसी ने आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर लिया थ्रू हैकिंग और थ्रू सम वायरस, these things can be stolen and this is one of the disadvantages, but we will discuss इसको कैसे सेव किया जाए. प्राइस वॉलेटिलिटी जी डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप असेस करें फाइनेंशियल मार्केट्स को जो रेगुलेटेड है, फाइनेंशियल मार्केट से मुराद कमोडिटीज हो गया, करेंसीज हो गई, या स्टॉक्स हो गए, कंट्री का इंडेक्स हो गया, इसकी जो वॉलेटिलिटी है ना, मूवमेंट मार्केट की बहुत ही कंट्रोल्ड है. ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 4%, 6% दिन में फ्लक्चुएट, ज्यादा से ज्यादा एवरेज मूवमेंट 2% अप एंड डाउन होती है. ठीक है. क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में जो प्राइस वॉलेटिलिटी इतनी सख्त है कि ये 20% से लेकर 80% आपके अगेंस्ट जाती है. अच्छा, एक्सक्यूज मी मोहसिन, यहाँ पे ना स्विंग ट्रेडिंग पे थोड़ा सा आप जरा दोबारा से ब्रीफ कर दें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग. No problem. Let's cover the point number 3 and 4 and I'll shift immediately to swing trading. Okay. ठीक है. So one of the disadvantages in the world of cryptocurrencies trading is price volatility जी. मार्केट बहुत तेज मूव करती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर. एक दिन में 20%, 40%, 80% आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं और आपके फेवर में भी जा सकती है. TKO एक कॉइन लॉन्च हुआ था 2 हफ्ते पहले. यू कैन ऑल कंडक्ट रिसर्च ऑन दिस. TKO कॉइन एक दिन के अंदर फेवर में 3800% ऊपर गया था. कैन यू इमेजिन? अब आप इमेजिन कर ले, अगर आपने सिर्फ $100 या 10,000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे और वो 3800% एक दिन में फ्यू मिनट्स ऊपर गया, हाउ मच कुड यू कुड हैव पैक्ड अप, हाउ मच मनी यू वुड हैव पैक्ड इन. सो या, प्राइस आर वेरी वॉलेटाइल. चौथी चीज है जी रेगुलेशंस. कई कंट्रीज में रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, कई कंट्रीज में अलाउड है, कई कंपनी में अलाउड नहीं है, कई कंट्रीज में रूल भी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि अलाउड है नॉट अलाउड है. सो रेगुलेशंस आर आल्सो चैलेंज इन वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग, बट इट्स नॉट अ बिग डील. आई बिलीव पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्लियर रूल नहीं है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर. आई गेस ओनली द थिंग दैट इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान इज दैट आप एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते in cryptocurrency trading. So but not a big deal, there are legitimate ways to go through it. So I hope the disadvantages of cryptocurrency are trading. So let's talk about swing trading ji.
स्विंग ट्रेडिंग बड़ा ब्रीफ बताइएगा, असल में स्विंग ट्रेडिंग बाद में आएगा ना, तो अभी ब्रीफ कर ले, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन ले लिए जाए फिर। ठीक है, बड़ा नो ब्रीफ सब प्रॉब्लम। बता दीजिएगा। इन वेरी शॉर्ट, स्विंग ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग टेक्निक जहां पे आप मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, 3 दिन से कुछ वीक्स तक के लिए इसको होल्ड रखते हैं। This is what swing trading is, holding a position or holding a cryptocurrency for a medium time frame. That's what swing trading is. जी, जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा मोहसिन, हम जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप जरा इस वक्त अगर इसको साइबर सिक्योरिटी का क्या इशू है जी, जरा बताना। ये कुछ पूछ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। साइबर सिक्योरिटी इशू से मुराद इन ब्रीफ, आपके जो क्रिप्टो करेंसीज अगर आप सेव करते हैं ना किसी जगह पे, आपको एक सिक्योर जगह पे इशू सेव करना है। जैसे हम बताया कि हर जैसे तिजोरी की चाबियां होती हैं, इसी तरह क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट कीज होती है जो एक कोड होता है। अगर आपने इस कोड को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया और आपके कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आपने सेव किया है, देयर इज चांस इफ योर कंप्यूटर गेट्स हैक्ड ड्यू टू वायरस और समथिंग, या आपके ऊपर स्पाईवेयर लगा हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, ये कीज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेट की इंफॉर्मेशन है वो हैकर एक्सेस कर सकता है। बट ये बहुत रेयर होता है। आई थिंक जिसके $100 $200 के क्रिप्टो करेंसी हो, उसको तो हैकर आई थिंक सोचेगा भी नहीं इसके कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए। सो दिस इज इन इजी वर्ड्स व्हाट इज अ साइबर सिक्योरिटी इशू। जी मोहसिन, अभी आप स्क्रीन जो है इसको आप हटा दें, हम जरा मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं और लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है। काइंडली आप अपना हैंड रेज करेंगे और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, देन यू कैन टॉक। इस वक्त आप अपने मैं स्क्रीन चेंज करना चाह रहा हूँ। आई कांट गेट द, आई थिंक आपको कैंसिल करना पड़ेगा। एक सेकंड, नहीं आपके पास ही है, आप कर सकते हैं इसको। आई कैन, यू वांट मी टू पॉज इट? आप बस अपनी स्क्रीन को उसको हटा दें। पॉज कर दें। हाँ डन। नहीं पॉज नहीं किया आपने, अभी नहीं हुई ना। आप Stop इसको ओके स्टॉप कर जी। अब आ गए तो जी। इस वक्त मैं जरा काइंडली आप हैंड रेज कीजिएगा। मेरे पास पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी, यासिर अली से है जी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली बताएं। यासिर, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी पहले। ओके अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा मेरी ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेरे कुछ दो लोगों के पास, उन्होंने अपने ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर वॉलेट्स भी बनाए थे, उसमें कोई यूएस डॉलर भी परचेज किए, P2P से कुछ करेंसी भी रखते हैं, तो उनको FIA की तरफ से कोई वो आदत है आपके पास पूछने करने की, आप क्या कर रहे हैं, इलीगल है, तो वो काइंडली उस पे हमें बताते हैं कि हमारे पास ऐसा लीगल वे कौन सा होगा इसको पाकिस्तान में बैठ के करने का। ओके देखें, ये इट्स अ वेरी अर्ली क्वेश्चन। मैं अगर ये भी डिस्कस कर दिया, हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर P2P, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे पीयर टू पीयर का ऑप्शन होगा, जहाँ पे इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ करेंसी एंड फियाट मनी होते हैं। ठीक है, इनको इफ यू वांट टू लेजिटिमेटली शेयर क्रिप्टो करेंसीज, दिस कैन बी डन थ्रू P2P ट्रांजैक्शंस। आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चंस, लेकिन अगर मैंने अभी ये डिस्कस किया ना, तो हमारा जो फ्यूचर प्रेजेंटेशन में ये टॉपिक कवर हो रहा है, इट विल बी अफेक्टेड। कैन इफ यू डोंट माइंड हम इसको पुश कर दें इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशंस के लिए? जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है, लेट्स पुश दिस बिकॉज़ दिस विल बी कवर्ड लेटर। हाँ, अदीब काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछें। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अदीब आपने हाथ खड़ा किया हुआ। ठीक हो गया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन्होंने हैंड रेज किया वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैंने इजाजत दे दी है जी। मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मैं अभी इधर KSA में जॉब कर रहा हूँ और यहीं से मैंने वो फाइनेंस पे अकाउंट वगैरह बनाया। तो अगर जैसे कि सूरत हाल चल रही है कि हम शिफ्ट भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं किस टाइम पाकिस्तान में, इस तरह अगर हम इधर यानी कि कोई काम कर रहे हैं, इसका फाइनेंस के ऊपर अकाउंट बनाया, तो जब हम पाकिस्तान में शिफ्ट होंगे तो उसके लिए हम वही यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे जाकर हमें फिर दोबारा से वो बनाना पड़ेगा, अकाउंट वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं। देखें, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं नॉलेज के लिए यहाँ पे शेयर करूँ, बट यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द बाइनेंस टेक्निकल सपोर्ट। फर्स्ट थिंग, आप सेम बाइनेंस का अकाउंट पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
सेकंड थिंग, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ये होगा कि आप बाइनेंस के सपोर्ट को ईमेल करें अपनी KYC अपडेट करने के लिए. KYC इज नो योर कस्टमर डिटेल्स. हर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर जो होता है वो KYC आपसे मांगता है. तो आप कहें कि भी आई हैव मूव्ड टू अ डिफरेंट लोकेशन, तो मैंने अपनी KYC अपडेट करनी है. आप जब पाकिस्तान में जाएंगे अपना पाकिस्तानी प्रूफ ऑफ एड्रेस उनको प्रोवाइड करेंगे, जो आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है या आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूटिलिटी या बैंक स्टेटमेंट. आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस होता है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. बिल्कुल, लेकिन चूंकि पाकिस्तान थोड़ा हाई रिस्क कंट्री में आता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिसीव करने के लिए, तो प्रेफरेंस दी जाती है आपका आईडी कार्ड प्लस आपके बैंक स्टेटमेंट का पहला पेज, और आपके बैंक स्टेटमेंट के पहले पेज के ऊपर आपका एड्रेस सिमिलर होना चाहिए आपके आईडी कार्ड की तरह का. ठीक है. हेलो जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ? जी बिल्कुल करें जी. गो अहेड. जी अच्छा, अभी आपने कहा कि डिसएडवांटेज के अंदर कि आप 1 से 2 घंटे की ट्रेडिंग करें, जो कि 1% to 5% 7% तक ले जाए, ज्यादा आप मत जाएं, जिसको आप कहते हैं कि लालच मत करें, क्योंकि मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी और प्रॉब्लम होगी. और ये आपने कहा था इस तरह करना है. दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि शॉर्ट टर्म मत करें, स्कैल्पिंग मत करें. तो 1 to 2 आवर्स तो स्कैल्पिंग में ही शुमार होगा. एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये करें, एक तरफ ये करें, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ. काइंडली दोबारा इसको गाइड कर दो प्लीज. ठीक है. जो मेन चीज थी, मेन ऑब्जेक्टिव था, इट्स नॉट डिस्करेजिंग, इट वाज, मैं ये कह रहा था कि डिसिप्लिन बिल्ड किया जाए. आप अपने सेट ऑफ आवर्स सेट कर लें कि आपने कितने घंटे ट्रेड करना है दिन के अंदर और वीक में कितनी दफा करना है, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो. लेकिन हम अपने थर्ड फेज के अंदर इंशाल्लाह जब ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे ना, आपको ऐसी टेक्निक्स इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी, सिखाई जाएंगी, which are very least stressy and they can इंशाल्लाह earn dramatic returns. Again, मैं एक चीज शेयर करूं, I'm not financial advisor, हम लोग के एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये प्रेजेंटेशन होस्ट कर रहे हैं, बट हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करेंगे एंड if there's a possibility I'll trade live in front of everyone. जबरदस्त जी, जबरदस्त. अगला क्वेश्चन निदा तनवीर, आप पूछें क्वेश्चन. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. आई वुड लाइक टू आस्क कि जब हम इमिग्रेशन या किसी और तरह के डॉक्यूमेंटेशंस की हमें प्रूफ ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या हम इस अकाउंट से प्रूफ ऑफ फंड्स उसको जो है वो कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्रिप्टो से? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस वक्त आप डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, ठीक है, इस वक्त जो गवर्नेंस है या जुरिस्डिक्शन, ये वैसे एक बात है, ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट आंसर करता है, बट आई विल आंसर फॉर यू. ऑलराइट. ओके, ऑलराइट. नाउ बेसिकली इफ यू आर डूइंग एन इमिग्रेशन, जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज करती हैं बैंक्स की बैंक डॉक्यूमेंटेशन. इस वक्त ऐसी रेगुलेशंस इशू नहीं, ऐसे लॉज नहीं बने जहाँ पे आपके क्रिप्टो करेंसी के एसेट को रियलाइज किया जाए. सो इट्स नॉट अ क्रेडिबल फॉर्म टू शो योर क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है. सो नो, इट कैन नॉट बी यूज्ड. यू हैव टू शो योर बैंक स्टेटमेंट. क्रिप्टो से पैसे, क्रिप्टो को बेच के बैंक में ले जाए ना पैसे, वो शो करके स्टेटमेंट बनवाएं, फिर वापस क्रिप्टो पे आ जाए. बिल्कुल. अच्छा जी, फैसल आजम, आप जरा क्वेश्चन पूछेंगे. आपने हैंड रेज किया हुआ है. मखदूम अली, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें. अलीहाज आईफोन, आप भी अपने आप को कर सकती हैं अनम्यूट. हेलो जी अलीहाज करेंगे या फिर? बिल्कुल, दिस विल बी डिस्कस्ड. अच्छा सही, क्योंकि वो डे 1 वाले में था, वो मैंने वो इस वजह से आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर. No, this is going to be covered. कोई सारे टॉपिक्स आज इंशाल्लाह कवर होंगे. Nothing will be postponed to tomorrow. Okay, thank you जी. मखदूम अली, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फैसल आजम, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लें. Any homework for the day? जी, एक क्वेश्चन है, any homework for the day? Any homework for the day? No, not in phase 1. It will be in phase 2. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्वेश्चन पूछें जी. जी, मैं फैसल आजम बात कर रहा हूँ. अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं ऑलरेडी बाइनेंस पे कर रहा हूँ कुछ टाइम से काम, तो आपने जो एक एडवांटेज बताया कि लो कमीशन, अभी इशू हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये होता है क्योंकि मैं वॉल्यूम ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे पास फंड्स हैं कुछ डिफरेंट लोगों के,
तो बाइनेंस पे अगर मैं USDT बाय कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3.76 पे मुझे पड़ रहा है बाइंग पे, और मेरे वॉलेट में 3.67 आ रहा है, और अगर मैं एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करता हूँ कोई 50,000 की अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ USDT की, तो मेरा 4,500 तो कमीशन ही चले जाएगा बाइनेंस पे। तो इसकी वजह से मुझे लोकल मर्चेंट से USDT लेना पड़ता है, तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बड़े हैं। तो आप कुछ ऐसे इश्यूज हमें सॉल्यूशंस बता सकते हैं बाइंग से रिलेटेड, कॉइन बेस और बाइनेंस से रिलेटेड? कि बड़ा एडवांस क्वेश्चन है फैसल आजम, बड़ा एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि हम सारे हैं बिल्कुल बिगनर्स, और ये बाइनेंस क्या चीज़ है हमें तो ये भी नहीं पता। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जो बिल्कुल न्यूबीज हैं उन तक जब बात आ जाएगी तो हाँ, अगर आप कुछ शॉर्ट में प्रिंस बता सकते हैं तो वो बता दें, अदरवाइज क्योंकि ये सवाल मेरे ऊपर से तो गुजर गया। नो प्रॉब्लम। देखिए फैसल, इफ यू डोंट माइंड, आप ये फेज 2 के एंड में क्वेश्चन पूछ लें, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि हम अपने जो न्यूबीज हैं उनको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते। और इफ पॉसिबल आई कैन आंसर दिस लेटर फॉर यू, मे बी व्हाट्सएप ग्रुप इफ यू विश। ठीक है, सॉरी दिस इज एडवांस क्वेश्चन, विल टेक इट लेटर। हाँ ठीक है। अच्छा, अभिषेक गिल आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। और जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं पहला फर्स्ट में मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो सर मैं बिगनर हूँ, तो सर मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये बैंक के साथ अटैच होता है? जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक से के थ्रू पैसे वगैरह हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रेडिंग? हेलो, ये आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है। मोहसिन ये पूछ रहे हैं कि क्या बैंक के साथ आपका अकाउंट अटैच होगा? ओके, बैंक के साथ अटैच तो नहीं है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ है या कोई इंटरनेशनल बैंक के साथ, आपका अकाउंट किसी इंटरनेशनल बैंक के साथ है, तो ये ट्रांजैक्शन इजीली हो जाती हैं। अदरवाइज ये इंडिविजुअल पीयर टू पीयर में होती हैं, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, जैज कैश के थ्रू। वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे अपने फेज 2 में। आई लेट्स नॉट टेक दिस क्वेश्चन नाउ, इट्स अबाउट बाइंग एंड सेलिंग एक्सचेंज। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। जी सर ये ट्रेडिंग जैसे कि हम अभी तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो जैसे हम ट्रेडिंग करेंगे सेलिंग बाइंग, वो उसी के ऊपर ऐप के ऊपर आएगा, मतलब कि किसी को सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं हम अगर कॉइन्स वगैरह? बिल्कुल, ये ऐप के ऊपर ही आएगा। ऐप के ऊपर, ठीक सर, शुक्रिया। ऐप के ऊपर ट्रेनिंग होगी फेज 3 के अंदर, ऐप के ऊपर पूरी ट्रेनिंग है। जी शुक्रिया। किसी का और को क्वेश्चन, ये जो आईफोन से आए हुए हैं जिनका आईफोन लिखा हुआ है, वो काइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा, जी मखदूम साहब जी जी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है जी, हाउ मच कैपिटल डू वी नीड फॉर अ सिंगल हेल्दी ट्रेड? मतलब हम अगर वीक में 5 ट्रेड्स करते हैं या जो कुछ भी है, हमें सिंगल ट्रेड के लिए एक हेल्दी कैपिटल कितना होना चाहिए हमारे पास, या ऑन द होल एज अ वीकली ट्रेड के लिए? मखदूम साहब, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। हेल्थी के मानी जो है ना, हर किसी के लिए डिफरेंट है। कई लोगों के लिए जो है 500 हेल्थी है, कई लोगों के लिए 2000 भी हेल्थी नहीं है। सो ये हम प्लीज वी विल डिस्कस दिस इन आवर ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। सो सॉरी, आई हैव टू पोस्टपोन दिस क्वेश्चन। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड जरा, ये जो इस तरह के सवाल है ना, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर ट्रेडिंग एंड स्पॉट ट्रेडिंग, ये जो कमेंट्स में आ रहे हैं, काइंडली इस तरह की चीज़ों के लिए गूगल इस्तेमाल कीजिएगा। हम जरा भी लेट्स फोकस आवरसेल्फ ऑन द कोर्स आइटम। इसके अलावा आपका जो प्लीज एक्सप्लेन अबाउट रेगुलेशंस इन डिटेल फॉर बिगिनर्स, ये भी हो जाएगा। और हसीब, आप सवाल पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है इस वक्त? हसीब, आपने अगर सवाल पूछ लिया है तो आप काइंडली लोअर योर हैंड। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने डिसएडवांटेजेस के हवाले से बताया, तो इसमें चौथा आपने बताया था रेगुलेशन का, तो काइंडली थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। और स्लाइड में हमें 4 आप डिसएडवांटेजेस के हवाले से बता रहे थे, वैसे वर्बली आपने कहा था कि 5 डिसएडवांटेजेस हैं, तो काइंडली अगर कोई 5वां है तो उसको भी ब्रीफ कर दीजिए। 5 सर, थैंक यू सो मच। 5वां जो है आपका टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। ओके, टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स आर रिक्वायर्ड। और रेगुलेशन को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा।
सॉरी रेगुलेशंस के इन सिंपल वर्ड से मुराद है आपके जिस कंट्री में आप इस वक्त मुकीम हैं उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके उधर के कानून क्या है इनके बारे में, सिर्फ ये मतलब है। ठीक है जी। जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है वो काइंडली लोअर योर हैंड। इस वक्त जी आप क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो स्टार 1 2 3 4 5 है, ये जरा क्वेश्चन पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले तो आप सबको रमजान मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे और सेहत दे। मेरा एक ही क्वेश्चन है, मुझे तकरीबन मैं 2015 से फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स। क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स का डिफरेंस जी। ठीक है, फॉरेक्स जो है जी एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। सेंट्रलाइज्ड करेंसी से मुराद हुकूमत इसको कंट्रोल करती है, स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है। और फॉरेक्स के अंदर जो मूव्स होती हैं ज्यादातर स्टेबल होती हैं, 1 से 2% की मूव है जो लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, दे मॉनिटर इट। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देयर इज नो, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, मीनिंग इसको कोई ऑन नहीं करता, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है और इसकी वॉलेटिलिटीज जो है, मूवमेंट जो है ऊपर नीचे जो है, इट्स मोर, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बताया, इट्स मोर देन 20 to 60% अ डे इट्स पॉसिबल। दैट्स व्हाट्स अ मेजर डिफरेंस। लेकिन अगली स्लाइड में हम कवर करने लगे हैं ये बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद। उस्मान जी आप क्वेश्चन पूछें जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। उस्मान जी। सर मोहसिन, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कनाडा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर किस तरह अगर बाइनेंस का ये अकाउंट वगैरह ओपनिंग, जिस तरह आपने तो मेजर अगर बताया P2P, तो यहाँ से किस तरह प्रोसेस होगा? Okay, again, all right, can you please unmute your mic? मैं अनम्यूट कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन जो है, अगेन दिस इज अ टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, बाइनेंस को पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसका जो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आपको अपनी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है बाइनेंस के अंदर और वहाँ पे विड्रॉवल ऑप्शन 2 कनाडा आपको मिल जाएगा। ठीक। आसिम खुर्शीद, आपने सवाल पूछ लिया? अगर नहीं पूछा तो काइंडली आप सवाल पूछें। नहीं सर, मैंने अभी पूछा। जी आसिम साहब आप सवाल पूछें सर। आवाज आ रही है मेरी? जी 100% जबरदस्त आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी सबको, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। अच्छा सर, एक तो मेरे ये 2 छोटे सवाल है। आपने मेंशन किया था आप ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड में, तो ये गोल्ड और क्रिप्टो क्या इनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर है? क्रिप्टो इज मच बेटर जो सुनने में आ रहा है आजकल, या गोल्ड बेटर है? और दूसरा यही ये बाइनेंस के बारे में क्वेश्चन है, अगर आप जब इसके आप फ्री हो जाएं इसके बाद। ओके, देखें, लेट अस से जो दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग फंड है या इन्वेस्टमेंट है उसका नाम है क्वांटम फंड। ये जॉर्ज सोरोस का है और इसका साइज बिलियंस ऑफ डॉलर्स है और इसकी जो सालाना परफॉर्मेंस है 35% अ ईयर है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो स्पॉटलाइट में है तो देयर आर मेनी पीपल जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो अचीव करें इस वक्त 60% to 200% अ ईयर ऑन ट्रेडिंग गोल्ड, फॉरेक्स और कमोडिटीज लाइक ऑयल और स्टॉक्स। तो 60 to 200% अ ईयर एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर जिसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वो सालाना अचीव कर सकता है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मेरे जैसा आदमी 200 to 300% फॉरेक्स ट्रेडिंग या गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर पर ईयर अचीव करता है तो क्रिप्टो करेंसीज में 1000 to 3000% अचीव करना ईजी है। लेकिन अगेन मैं एग्जैजरेट नहीं करना चाह रहा, इस वक्त होप्स नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे, हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना बनता है। लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि इस वक्त ग्लोबली अब तो कोविड से जो हालात कर दिए हैं बिजनेसेस के और इन्वेस्टमेंट और बैंक्स के, ये वाले रिटर्न्स तो आप भूल जाएं। इस वक्त जो नेट रिजल्ट्स आ रहे हैं 10 to 20% या 20 to 30% हार्डली साल के आ रहे हैं। यू कैन मेक मोर देन दैट। प्लीज लेट अस कवर दिस क्वेश्चन इन द फेज 3। हमें मेरे ख्याल काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। ये चूंकि प्रोग्राम हमारा 10 दिन का है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज का जो सेशन है हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन अभिषेक गिल, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप काइंडली पूछें। जी पूछें आप अभिषेक गिल। जी सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे कि हम जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर सेलर या बायर ये फेक नहीं है या हैकर नहीं है? कोई जैसे आपने सर ने बताया कि हैकिंग भी होती है इसमें,
تو हमें कैसे सर इसका मालूम होगा कि मतलब ये हैकर नहीं है, हम इससे सेल या बाय कर सकते हैं? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हम लोग ये डिस्कस करेंगे जी अपने जब एक्सचेंजेस के टॉपिक पे आएंगे, हाउ टू चूज एक्सचेंजर्स, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर्स जो इंडिविजुअल होते हैं और जो प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे बाइनेंस, पोलोनिक्स हो गया, हम उसमें प्लीज ये डिस्कस करेंगे। लेट्स नॉट डिस्कस इन द फर्स्ट फेज, आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। सॉरी फॉर दैट। ओके, आज के सेशन को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। ये जिन्होंने लेट अटेंड किया है, इसका लिंक अभी थोड़ी देर तक मुझे आ जाएगा, मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा। आप उस सेशन को वहीं से आप दोबारा देख लीजिएगा जहाँ पे आपने ज्वाइन किया था, उससे पहले का पोर्शन देख लीजिएगा। तो अभी मैं आपको लिंक जनरेट कर दूंगा जो ही मेरे पास आएगा इसकी रिकॉर्डिंग का, और इंशाल्लाह हम अगले 10 दिन इसको फुल टाइम एंजॉय करेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ, और देखें बीइंग अ बिगिनर मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसके डूज एंड डोंट्स का पता चल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हार्ड अर्न मनी जो मैंने ट्रेनिंग से कमाई है एक ही दिन में मैंने उधर लगा दी, मैं उससे बच जाऊँ। क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कब बेचना है, इसका पता चल जाए। फिर जो प्रॉफिट है जो मैंने ट्रेडिंग से कमाया वो मेरे अकाउंट में कैसे आए, पाकिस्तान में कैसे आए, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। यही मेरा ख्याल सवाल सबके होंगे, ठीक है। मैं खुद एक बिल्कुल बिगिनर लेवल का हूँ, मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी का आइडिया नहीं है, और मैंने इसी ग्रुप में सीखना है। और बाद में हमारा जो एक मेजर ग्रुप बनेगा जिसमें हम अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स एक दूसरे की गाइडेंस के लिए करेंगे, वो भी करेंगे। डू वी मीट द एजेंडा फॉर टुडे? जी बिल्कुल, आज का हमने जो सेशन था बेसिकली इट वाज इंट्रोडक्टरी सेशन। और मोहसिन, कल की हमारी क्या चीज़ होगी? कल जी हम थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे। अकाउंट कब खोलना है सर? सॉरी, अकाउंट कब खोलने? अकाउंट हम थर्ड डे में इंशाल्लाह देखेंगे। ओके, अकाउंट थर्ड डे में खोलने हैं, ठीक है। फिर अकाउंट के बाद देखना होगा कि हमने कौन सी करेंसीज में ट्रेड करना है, और फिर उसके टेक्निकल पार्ट पे आ जाएंगे कि करेंसी को कब आपने पकड़ना है, यही चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम पहले ना, इससे पहले कल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि वी डिडंट कवर द व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी। सो टुमारो हम डिस्कस करेंगे जी फॉर टुमारो व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है, और क्रिप्टो करेंसी अगर आप ट्रेड करने लगे हैं उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज क्या होती हैं, और क्रिप्टो करेंसीज की मुख्तलिफ अक़साम। कल इंशाल्लाह हम ये कवर करेंगे। एक क्वेश्चन हम पहले भी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जी। प्लीज क्लियर इफ इट्स डिसेंट्रलाइज्ड हाउ इज इट रिलेटेड टू माइनिंग? ये क्वेश्चन है जी एक, हाउ इट इज रिलेटेड टू माइनिंग। माइनिंग हमारे इस कोर्स में शामिल नहीं है। It's not हम लोग देखिए हमारे जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, it's only to teach you the skills that are required to become successful crypto trader. हम we will not be discussing mining. Sorry, मैंने जैसे बताया ये IT कोर्स नहीं है, हमने क्रिप्टो करेंसी डेवलप नहीं करनी, हमने ट्रेड करके पैसे निकालने। ओके, अच्छा, हमारा सेशन हर रोज हम 10:30 बजे करेंगे, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप तरावी से और बाकी जो खाने वाने से आप फारिग होकर बैठ जाते हैं। किसी साहब का एक क्वेश्चन है जी कि 1 घंटा काफ़ी कम है, 2 घंटे होने चाहिए। 2 घंटे देखें, मैं सारी ज़िंदगी से मैं ट्रेनिंग में हूँ, एट ए स्ट्रेच 2 घंटे आप सिर्फ थिएटर में बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं। ये जो लर्निंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, इसको 2 घंटे आप नहीं सुन सकते, ठीक है। या तो कोई मूवी हो और या फिर थिएटर वेटर हो, अदरवाइज जो अटेंशन स्पैन है ना, वो ख़ासतौर पर रोज़ा रखा हुआ और तरावी पढ़ कर आया हुआ हो, तो मेरा ख्याल है 40 मिनट्स इज़ द बेस्ट टाइम। 40 मिनट्स टू 1 आवर हम इसको डेली किया करेंगे। बाकी सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काइंडली आपने स्क्रीन शेयर करनी शुरू कर दी है। आप यासर, आप अपनी स्क्रीन को ज़रा रिमूव करें। यासर, आप अपनी स्क्रीन को रिमूव करें जी। हाइड वीडियो पैनल और एग्जिट फुल स्क्रीन। एनीवे जी, यासर की मेरे ख्याल गलती से स्क्रीन होगी। यासर, आप स्क्रीन को रिमूव करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इंशाल्लाह हम कल 10:30 बजे दोबारा हाजिर होंगे। 10:30 बजे हम सेशन करेंगे
اور باقی جو کوشچن ہوں گے وہ کل لیں گے ہم انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی فیڈ بیک ہو آپ واٹس ایپ کے گروپ میں اوپن دیجیے گا, اس پروگرام کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, اور اوپن دیجیے گا فیڈ بیک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ ایوری ون.